Namaste and welcome all of you to today's session, today's video. Well, dear viewers, we are going to talk about some very important things from today's videos और क्या हम बात करने वाले हैं वो चीजें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। कॉर्पोरेट लॉस की केस स्टडीज के साथ हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं अपने आज के सेशन से और यहाँ पर जो हमने सबसे पहला केस स्टडी उठाया है अपने इस सेशन में डिस्कशन करने के लिए, दैट इज there on the screen for you. Yes, we are going to discuss on one of the very important case, the judgment of NCLAT given in the case of Mr. Pankaj Kumar Mishra being the appellant versus ROC Mumbai and others being the respondents. NCLT Mumbai बेंच के ऑर्डर को क्वैश करते हुए NCLAT का पास करा गया ऑर्डर 30/9/2020 को इन द कंपनी अपील नंबर 121 of 2020. Now, what was the case and what happened? Let's move into the details. Well, बच्चों, इस केस में जिस कॉन्सेप्ट को मेजरली हाईलाइट करा गया था वो ये था कि सेक्शन नंबर 252 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ऑर्डर दिए जाने के पहले ट्राइब्यूनल को एक रीजनेबल और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना बहुत जरूरी है. And not just an opportunity to heard, but an opportunity to make the representation should be given to the company concerned, to the ROC and all the persons who are concerned or may be impacted by that order. अब होता क्या है इस केस में? तो there's a company in question in the name of Viking Ship Managers Private Limited in Mumbai, and the name of this company was struck off from the records of ROC Mumbai. Principal Commissioner of Income Tax Mumbai challenges this order of the ROC Mumbai in NCLT and वो अपनी अपील में ये स्टेट करते हैं कि कंपनी वाइकिंग शिप मैनेजर्स कंपनी के द्वारा एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करा गया था इन द असेसमेंट ईयर 2011-12 और इसके संबंध में कंपनी ने अपना रिटर्न नहीं भरा था. अब सब हमने इस कंपनी को सेक्शन 148 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत एक ऑर्डर जारी करा है कि आप अपनी इनकम का रीअसेसमेंट करिए और ये जो इनकम टैक्स लायबिलिटी आपकी बन रही है अगेंस्ट दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसको पे ऑफ करिए. पर इसी दौरान बीच में होता यह है कि आरओसी ऑर्डर के चलते उस कंपनी का नाम स्टॉक ऑफ हो जाता है और स्टॉक ऑफ हो जाने के बाद being declared as a defunct company, it is very difficult to assess the records and to complete with the filings and reassessment of the incomes of such a defunct company. अच्छा, और अगर ऐसा रहा तो वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाइकिंग शिप मैनेजर्स ने करा है उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिटर्न नहीं फाइल होने की स्थिति में इट विल रिजल्ट इन ह्यूज लॉस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो अब ये नाम को भैया आप दोबारा से रिस्टोर करिए. वी आर रिक्वेस्टिंग, We want that the ROC Mumbai should restore the name और इस तरीके की अपील लेकर के praying this to the NCLT, the Principal Commissioner of Income Tax files an appeal. बताते हैं वो सारी चीजें हमें इनकम टैक्स ऑफिसर मुंबई से सारी इंफॉर्मेशन मिली है कंपनी के संबंध में. तो अब हम चाह रहे हैं कि भाई इस कंपनी का नाम रिस्टोर कर दिया जाए. जब ROC मुंबई से इस चीज के बारे में पूछा जाता है by issuing a notice to them, the authorized representatives of the ROC Mumbai states that they are absolutely okay with this. They states that they submit a reply to the tribunal that they do not have any objection. उन्हें कोई परेशानी नहीं है, उन्हें कोई objection नहीं है कंपनी के नाम को रिस्टोर करने के लिए. और इस जवाब के मिलने के बाद NCLT मुंबई बेंच के द्वारा एक ऑर्डर पास कर दिया जाता है. An impugned order, that is the main question over here, stating that the name be restored. But this order was passed without giving any opportunity of being heard or making any sort of representations to the company with Viking Ship Managers in the question, to the ROC, to the persons concerned with the company. We did give an opportunity to the ROC, but we did not give any opportunity to the company concerned or the people who might be associated with and are impacted by the order.
No notice was being served on the company, and the company was being arrayed as a respondent. It was clothed as a respondent. And now comes into picture. अब पिक्चर में आते हैं हमारे अपीलेंट मिस्टर पंकज कुमार मिश्रा, एक्स डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, majority शेयर होल्डर और साथ ही साथ पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, who comes into the picture and files an appeal to the National Company Law Appellate Tribunal, being aggrieved from the order of National Company Law Tribunal Mumbai bench, stating that कि ये ऑर्डर जो NCLT के द्वारा पास करा गया है, इसमें कंपनी कंसर्न को तो कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी ही नहीं गई, जबकि सेक्शन 252 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बड़ा क्लियरली ये कहता है कि एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड मेकिंग रिप्रेजेंटेशंस दिया जाना बहुत जरूरी है अगर एनसीएलटी कोई ऑर्डर पास कर रही है इस सेक्शन के अंतर्गत, टू द आरओसी, टू द कंपनी कंसर्न एंड पीपल एसोसिएटेड। आपने आरओसी से तो बात कर ली, उन्हें तो मौका दे दिया अपनी बात रखने का, बट व्हाट अबाउट द कंपनी कंसर्न? इट वाज arrayed as a respondent, it was clothed as a respondent. इवन एनसीएलटी रूल्स 2016 के रूल 37 में क्लियरली ये कहा गया कि एक शो कॉज नोटिस जारी करा जाएगा टू द रिस्पोंडेंट टू प्रेजेंट देयर पॉइंट, and an opportunity of being heard shall be given to them, an opportunity of making representations shall be given to them. क्या हुआ उसका? मिला ही नहीं हमें तो। इन सब बातों को सुनने के बाद एनसीएलटी का जजमेंट सामने आता है, questioning the order of NCLT, clearly stating in the order that the impugned order in question given by NCLT is not at all sustainable in law, because it was given without giving that much required opportunity of being heard and making representations to the company concerned in the case. And when such an order is being passed, definitely this order is not sustainable in law. We are remitting back the case to you. NCLT के ऑर्डर में ये क्लियरली मेंशन करा गया कि आपके पास ये केस वापस भेजा जा रहा है, इट इज रेमिटेड बैक टू यू। अपना पुराना ऑर्डर सेट असाइड करिए, सेक्शन 252 धारा 252 के प्रावधानों और एनसीएलटी के नियमों को ध्यान में रखते हुए दोबारा इस मैटर को कंसिडर करिए और अपना निर्णय सुनाइए विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम योर प्रीवियस और अर्लियर ऑर्डर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव आप इस केस का क्रक्स समझ चुके हो कि इस केस में क्या बताया गया। कुछ और केस स्टडीज और कुछ और ऐसे केस लॉस के साथ मैं आपसे बहुत जल्दी मिलने वाली हूं। स्टे ट्यून्ड विद अस, कॉन्टैक्ट अस ऑन द स्क्रोलिंग नंबर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, हमारा यूट्यूब चैनल पल्लवी परिहार नाम से है। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, प्रेस ऑन द बेल आइकन ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो। और एकेडमिक रिलेटेड दूसरे सारे लेक्चर्स के लिए आप हमसे हमारी ऐप पर जुड़ सकते हैं जो CS पल्लवी परिहार नाम से आपको प्ले स्टोर और iOS पर मिल जाएगी। So I'm going to see you there, and up next will be some more videos. You need to wait for that. Till then, bye bye and take care.